Hello students, this video is about equations of rotational motion. Rotational motion, you all know that when a body rotates around a center of mass, then we can say that the body is in state of rotational motion. And you have already studied that there are three types of equations of motion in case of linear motion. That is v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and third equation of motion is v square minus u square is equals to 2as. Here v is the final velocity of the object, u is the initial velocity of the object, a is the acceleration, and t is the time period. Here s is the displacement of the object, and all ut, at are the same terms, that is initial velocity, final velocity, acceleration and time. But in case of rotational motion, we have three different type of equation of motion. In that case, the final velocity is replaced by omega, initial velocity is replaced by omega naught, and acceleration is replaced by alpha, and time period remains same. So this is the first equation of motion in case of rotational motion. Similarly, the displacement s, जिसको हम लीनियर मोशन में s से डिनोट करते हैं, वहीं रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज़ इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी जो कि ओमेगा नॉट से डिनोट कर रहे हैं, टाइम पीरियड इज सेम प्लस हाफ, acceleration is denoted by alpha t square. So this is second equation of motion in case of rotational motion. Similarly, third equation of motion is as v square is represented by omega square minus omega naught square is equals to 2 alpha theta. So these are the three equations of motion in case of rotational motion, and these are three Newton's equations of motion in case of linear motion. So let me first derive first equation of motion, that is omega is equals to omega naught plus alpha t. This is first equation of motion. इसका derivation करते हैं. So similarly जैसे कि हम इनके लिए derivations करते थे, वही process हमें same repeat करना है. You know that acceleration is equals to change in velocity per unit time. इस केस में रोटेशनल मोशन के केस में एसेलरेशन को अल्फा से डिनोट किया जा रहा है एंड फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा से. सो इस इक्वेशन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. And when we cross multiply this equation, then we have d omega is equals to alpha dt, and this is the change in velocity, but here d derivative shows the small change in velocity. लेकिन हमें चाहिए complete change, जिसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है बोथ साइड, एंड वी हैव टू अप्लाई द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. सो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर टाइम पीरियड इज 0 to t, एंड फॉर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू, इसके लिए जो लिमिट होगी, लोअर लिमिट इज ओमेगा नॉट, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, अपर लिमिट इज ओमेगा, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, एंड फॉर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू 0 to theta. So when we integrate both the sides, then we can write this equation as omega naught to omega d omega is equals to alpha. Alpha behaves like a constant for dt, और ये constant की तरह behave कर रहा है, इसीलिए इसको इस integration के symbol से हम बाहर लिख लेंगे एंड अप्लाई करेंगे लिमिट फॉर टाइम इंटरवल के लिए, दैट इज 0 to t एंड dt. और इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय एडिंग वन टर्म and by dividing the whole term by the equation. Then we have, ये derivative integration से cut हो जाएगा, then we have only omega naught to omega is equals to alpha and t 0 to t. अब लिमिट को ओपन करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला लगता है, दैट इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा t माइनस 0. अपर लिमिट है t और लोअर लिमिट है 0. When we open this equation, then we have omega minus omega naught is equals to alpha t, or we can write it as omega is equals to omega naught plus alpha t. So this is the first equation of rotational motion जो हमें prove करनी थी. Now the second one is theta is equals to omega naught t plus half alpha t square. So you know that, we know that ओमेगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. इन लीनियर केस में आप कैसे लिखते हो, एस इज इक्वल्स टू
dv by v इज इक्वल्स टू ds by dt, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया जा रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट को थीटा से। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, देन वी हैव डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड डी थीटा represent the small change in displacement and here dt represent the small change in टाइम एंड ओमेगा की वैल्यू हमें पता ही है, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन से फाइंड आउट करी है। उसकी वैल्यू को जब हम इसमें पुट करते हैं देन द इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी इंटू में डी टी। सो डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट डी टी प्लस एल्फा टी डी टी। अब ये तो हो गया हमारे पास स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन टाइम, लेकिन कंप्लीट चेंज के लिए, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बिटवीन द लिमिट्स। लिमिट्स थीटा की है हमारे पास 0 टू थीटा एंड टाइम इंटरवल के लिए लिमिट्स है हमारे पास 0 टू टी एंड अगेन टाइम इंटरवल के लिए लिमिट है 0 टू टी। 0 टू टी 0 टू थीटा का यहाँ से मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है और उसको ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाना है, तो जब तक वो मूव नहीं करेगी तब तक वो बी पोजीशन पे पहुंचेगी नहीं। इट मीन्स जब तक वो ए पोजीशन पे थी उसने कोई भी मूवमेंट नहीं किया, उसके अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, तो इनिशियली वो रेस्ट पे है। तो दिस इज़ द इनिशियल लिमिट, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी। फाइनली जब वो बी पॉइंट पे पहुंची उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है, लेट उस डिस्प्लेसमेंट को हमने थीटा कंसीडर कर लिया। सिमिलरली टाइम के लिए अगर हम लिमिट देखें तो जब वो बॉडी ए पोजीशन पे थी उसने बी पोजीशन पे जाने से पहले कुछ ना कुछ टाइम लिया, लेकिन जब वो ए पोजीशन पे थी, रेस्ट में थी, इट मीन्स इट एग्जिबिट 0 टाइम पीरियड एंड देन आफ्टर गोइंग एट पोजीशन बी इसने कुछ ना कुछ टाइम लिया जिसको हमने स्मॉल टी से डिनोट किया। सो वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन both the sides, then we have theta 0 to theta which is equals to omega naught। ओमेगा नॉट जो कि इनिशियल वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का काम कर रही है, इसीलिए हमने उसको इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर लिखा है। सो वी कैन राइट इट एज ओमेगा टी 0 टू टी प्लस एल्फा इज बिहेव्स लाइक अ ऑल्सो कॉन्स्टेंट टी के रिस्पेक्ट में, बट टी इज़ अ वेरिएबल फॉर डी टी एंड इसकी जो इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 1 है, उसके अंदर एक पावर ऐड कर देंगे और टोटल पावर दैट इज़ 1 + 1 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। सो इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज़ टी स्क्वायर बाई 2 बिटवीन द लिमिट्स 0 टू टी। नाउ वी हैव टू ओपन दिस लिमिट, देन वी हैव थीटा माइनस 0 मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है विच इज़ इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी माइनस 0 प्लस एल्फा, अपर लिमिट जो कि टी है टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। देन वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, देन थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। और यही हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। Now the third equation of motion in case of rotational motion is omega square minus omega naught square is equals to 2 alpha theta, whereas in case of linear motion this equation is v square minus u square is equals to 2as. So we know that alpha is equals to d omega by dt. Alpha is the acceleration. Acceleration क्या होता है? Change in velocity with respect to time. लेकिन रोटेशनल मोशन के केस में हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। लेकिन हमें ये इक्वेशन जब प्रूव करनी है उसमें थीटा एक ऐसी क्वांटिटी है कि वो भी इस इक्वेशन में चाहिए। सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय थीटा इन दिस इक्वेशन, दैट इज डी थीटा बाय डी थीटा। तो अल्फा को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी ओमेगा बाय डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाय डी टी, क्योंकि जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। सो इसकी जगह हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि रोटेशनल मोशन के अंदर हम उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इक्वेशन बिकम्स अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी थीटा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, और वी कैन राइट इट एज ओमेगा डी ओमेगा बाय
d theta. So this is equation first. When we cross multiply this equation, then we have alpha d theta is equals to omega d omega. This is equation second. And here also d theta and d omega represent the small change in displacement, and this represent the small change in velocity. And complete change के लिए again we have to integrate both the sides of the equation between the limits. थीटा के लिए हम लिमिट्स लेके चल रहे हैं, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज थीटा. ओमेगा के लिए हम लोअर लिमिट लेके चल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट एंड फाइनल वेलोसिटी इज ओमेगा. So we integrate both the equation, then alpha behaves like a constant for d theta. इसको हम बाहर ही लिखेंगे and इसका जो integration होगा that is only theta 0 to theta which is equals to omega is a variable with respect to d omega. इसको हम इस तरीके से represent करेंगे, integration omega d omega between the limits omega naught to omega, because it is a variable quantity for d omega. So we can write it as, इसका जो integration होगा that is omega square upon 2 between the limits omega naught to omega. Then we open this equation, then we have alpha theta minus 0 is equals to omega square upon 2 minus omega naught का square upon 2. This equation becomes alpha theta is equals to 1 by 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा, विच इज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन. जो कि लीनियर मोशन के केस में होता था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. Here v is represented by omega, u is represented by omega naught, alpha is represented by acceleration is represented by alpha, and displacement s is represented by theta. Only terms varied in case of rotational motion, but the process and the properties remains same. So these are all three equations in rotational motion.